the iconic professional. Please put your hands together for Sumit, sir, the creativity head for iconic profession. Please put your hands together, everyone. Thank you. Thank you. So hold on, thank you. hold on. He'll Well- call you. Hello, everyone. How are you all? All good? সবাই ভালো আছো তো বলো? And yes, again, Anjan Roy is there. একবার দুজনের জন্য Hi. জোরে হাততালি হয়ে যাক. They are from iconic professional. So they will only understand if I speak Hello, in hello. Bengali. I think so. But my Bengali is not good. So I can only ask one question. Kemon achi? Bhalo. Khub bhalo. Exactly. Great. So can we have our models, please, on the stage? Lovely models. Mega, right? So we have Mega. मैं आज करने वाला हूँ ponytail, a representation of ponytail, but a very different way of ponytail. And we have Anjan with us today. And do you want to explain what are you going to do, Anjan? Yeah. Hello, Kolkata. And thanks to everyone. ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যে আপনারা আজকে শোতে এসেছেন I'm going to put your chin and down a little bit. we will try to Sit, make sit, it as successful as possible for you guys. आप लोगों के लिए जितना भी हम लोग इसको यूजफुल हो सकता है हम जो करने वाले हैं आज. So let me explain quickly what we are going to do. Right now, जब आपने पोस्टर देखा होगा उसमें talking about trends of 2025. तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग मतलब इट्स कपल ऑफ इयर्स बैक शुरू हुआ था कर्टन बैंक्स वगैरह थिंग्स हैव स्टार्टेड देन स्लोली इट फॉलोड विद वुल्फ कट फिर शैग्स एंड देन स्लोली बटरफ्लाइज लॉट ऑफ कट्स आर कमिंग इन तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे द कट्स आर अगेन चेंजिंग टूवर्ड्स दोज 80s 90s even 2000 जब emo cuts were very much trending. So as we all of us know that fashion keeps repeating itself. So right now hairdressing and the haircuts are coming back into that era where there's a lot of texture, lot of movement. तो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ it is something like that जो आप लोग मतलब the upcoming trends of 2025 जिसमें you'll be able to see lot of layers, lot of textures at the same time how to define जब आप हेयर कट करोगे उसको कैसे आप डिफाइन करोगे उसको कैसे टेक्सचर्स को मोर डिस्प्ले कर पाओगे सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट ओके ओवर टू सुमित Okay, so right now for the time being, मैं अपने section isolate कर रहा हूँ. Something which is very very important, and without isolation your sections, you can't work with any kind of styling, any kind of upstyle, any kind of haircut. तो अभी मैं फिलहाल I am segregating my sections. Once I am done with that, I will show you what all sections I have removed, which will help you to achieve what we are doing today. So, हमने क्या किया है? हमने एक triangle section निकाला है top पे, drop your head back. Triangle section top पे निकाला है, and then we have removed radial partings. After that, we will work on the back of the head. So पहले इसके अंदर हम एक V section लेंगे, and we will isolate that. Same thing on the other side, diagonal back section and isolate it. तो आपके पास actually पीछे एक V बन जाएगा, right? Once you have that V, you'll have to take the hair and put a ponytail around the occipital bone. किधर करेंगे हम ponytail? जिधर हमारा occipital bone होता है, just around that area हम इसको करेंगे यहाँ पर ponytail, and it is very important to make the ponytail around the occipital area because once this and this hair will go, it will go up here and become another ponytail around here. So it is very important कि आप इन दोनों ponytails के बीच में gap रखें, and why gap रखें I will tell you that as well. Okay, so let me explain what I'm doing. Right now I'm trying to take out a horseshoe section. आप लोग सभी जानते हो horseshoe section या hatline section जो भी आप कहते हो. This is one of the most important area of the head which actually defines lot of things. आपका अगर face shape अगर आपको create करना है rightly, so this is the area which helps. अगर आपको volume create करना है rightly, this is the area which helps. And at the same time, अगर आपको face के according
फ्रिंचेस वगैरह आप करते हो, इवन इन टर्म्स ऑफ यू नो योर राउंड फेस, ओब्लॉन्ग फेस, जो भी आप क्रिएट करते हो, सो दिस एरिया यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ. सो मैंने पहले उस सेक्शन को मैंने निकाल लिया. सो नाउ दिस इज द एरिया which is going to follow your jawline. So I'm separating that. So I'm using a bungee band. This is how it looks like. इसके दोनों ends पे एक hook होता है. So you put the hook and you turn around the bungee band so that your ponytail is nice and secured. So within like 30 seconds, my ponytail is done. Now what I will do is I will take this hair, take it higher and create a higher ponytail. So after that, जो हमारे साइड्स जो है वो मैंने आइसोलेट कर लिए. उसके बाद नाउ आई एम सेपरेटिंग द एरिया ऑफ द बैक. So this is the area, this is the nape, or just below the crown and above the occipital bone. ये एरिया जो है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप लोग मतलब जब हेयर ड्रेसिंग करते हो, यू नो कि दिस इज द एरिया जहां पे आप काम करते हो टू क्रिएट वॉल्यूम. सो यहाँ पे वी विल ट्राई टू हैव लॉट ऑफ, मतलब अगर आपका हेड बहुत बड़ा है तो यहाँ पे सेक्शन जो होगा वो भी अकॉर्डिंगली बड़ा होगा. एंड द नेप जो है, अगर आप डेंसिटी पे ज्यादा काम करना चाहते हो, सो सिक्योर योर लेंथ. सो दिस इज योर लेंथ. ओके, नाउ जो मैंने टॉप में लिया था, यू सी द बिगेस्ट सेक्शन आई हैव इज द टॉप. सो नाउ आई डिवाइड द टॉप. टॉप जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. So I can balance both the sides of the head. Because आप लोग curtain bangs अगर देखे होंगे, so it is little long in length, which is hanging in both the sides of the faces. So from the back, now you have two ponytails, ponytail over a ponytail. Now what will we do is, we'll take the side hair and blend it to the ponytail at the back, which is the topmost ponytail. I'm using the hairspray from very close, बहुत पास से मैं hairspray लगा रहा हूँ, so that you get even distribution of the product and the combing becomes easier. और उससे जो आपका cleanliness है, that also comes really, really nice. So what I'm doing over here with my model, तो यहाँ पे we are pulling it straight parallel to the ground. Point cutting. आप लोग चाहो तो इसको रेजर भी यूज कर सकते हो. It is very, very important कि आपका जो equipments है या जो आपके products हैं, what you're going to use on the client,
you know about your equipments and tools, because usually क्या होता है, most of the times we are not very sure about our equipments and tools, और जब हम काम करने जाते हैं, so what happens is that हमारा जो end result है वो सही नहीं आता है, because हमारा जो equipments and tools हमने use किया है, we are not very comfortable using them, or we don't know what is the actual use of the equipment or the product. So again, very, very important to understand what equipment, what product are you using on the clients or the models here. So ये मेरे guide बन गए. This is my guide, okay? And now, what I'll do is, I'll leave the front. ये जो first section है, I'll leave this. Because this, ये मैं तब यूज करूंगा जब मुझे फेस के शेप के अकॉर्डिंग हेयर कट को पर्सनलाइज करना होगा. So now, as we have already established the guide, So that's how my ponytail now looks like, nice and clean and neat, right? अब हम क्या करेंगे, because इस ponytail के अंदर height नहीं है ज़्यादा, right? You don't have that much volume on the ponytail. अब हम क्या करेंगे, जो top triangle section हमने लिया था, इसको हम open up करेंगे. We will divide it into 2 equal halves. अगर आप इस point पे इसको अगर आप crimp करना चाहते हैं, go ahead, no problem. Crimp the hair, back comb the hair, create a little bit of poof on the top, and then you take the hair, you divide it into center half, and जो हमने सबसे ऊपर ponytail किया था, उसके नीचे there will be a third ponytail, correct? So now we will be taking this and creating the third ponytail. okay? So slowly I'll follow the area of the top. जो top का area था, so we are combing it slowly. यहाँ पे मैंने जो side का है, यहाँ पे मैंने guide create करा था, and I'm slowly over directing everything to the side of the head. जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग यहाँ पे रेजर भी यूज कर सकते हो. Okay. Same, we will repeat on the other side. We left the front. We will leave the front to personalize. मतलब जो फ्रंट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर फेस शेप जो है आपका वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर रहा है, क्लाइंट के जो लुक है उसमें आप चेंजेस लाना चाहते हो, तो इन दैट केस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So a ponytail right below the ponytail will help you achieve more volume on the first ponytail, height maybe. So we have basically created 3 ponytails overall. So as soon as I have done the lower ponytail, you see I have got height on this ponytail. You see that height, we've got that height because of the ponytail we have done below it. Just cleaning the section now.
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्प्रेज, दो तरीके के स्प्रेज होते हैं. एक स्प्रे होता है आपका होल्डिंग स्प्रे एंड द अदर स्प्रे इज योर फिक्सिंग स्प्रे. तो हम कभी यूज करेंगे फिक्सिंग स्प्रे जब हम कंप्लीटली श्योर है कि अब हमारा होल्ड हो गया है एंड दिस इज द फाइनल लुक आई वांट टू अचीव. सो एट दैट पॉइंट यू विल यूज अ fixing spray. So now you have 3 ponytails. All 3 ponytails will be hidden completely. And now the front. So for the front what I'll do is, because मेरे को लगता है कि मेरा जो front है that is really long for my styling. Correct? So always whenever जब भी आप styling करते हैं client के ऊपर, model के ऊपर, तो उनको explain करो that with certain kind of hair मेरे को कुछ अलग ही result मिलने वाला है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट बोलता है मेरा ये फ्रंट बहुत लंबा है एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू हैव दैट फ्रंट वेव्ड आउट, तो अगर आप इतने लंबे उसके ऊपर वेव आउट करोगे तो वो बहुत जल्दी फ्लैट आउट हो जाएगा. राइट? सो इन दिस सिनेरियो व्हाट यू हैव टू टेल द क्लाइंट कि देखो मैं कर तो दूंगी बट या कर दूंगा बट द होल पॉइंट इज दैट आई विल हैव टू गो स्लाइटली शॉर्टर ऑन द फ्रंट एरिया. सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग द सेक्शंस, combing it out straight out of the head and cutting it, and then you can add some movement by personalizing it or texturizing it ताकि वो थोड़ा softer fall करे, बहुत heavy fall नहीं करना चाहिए. And then again go back into it and divide the hair and now let it rest. So once it rests, then it will be easier for you to blow dry or curl the overall hair. So now what I'm going to do is I'm going to start curling the hair. For that I'm using CT28. We'll just move this forward a little bit. Okay. Okay, perfect. So I usually keep my tongs at 180, 190 degrees. मैं उससे ज़्यादा उसको नहीं करता हूँ because I feel that the quality or the integrity of the hair should not be hampered. Okay, we'll let the iron tongs heat out a little bit, and till then we can blow dry the front. Okay, so आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा गाइड है साइड से मैंने कट किया था, यू विल सी दिस पार्ट इज लॉन्गर. तो मैं थोड़ा सा इसको, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन लेयर्स, यूजुअली आप लोग देखोगे फ्रिंज जो है, जो सॉलिड फ्रिंचेस होता है यूजुअली हम लोग सॉलिड काटते हैं इसको स्ट्रेट, लेकिन यहां वी विल एलिवेट इट अ लिटिल. ओके, तो हम लोग फेस से थोड़ा सा एंगुलरली ऊपर की तरफ जाएंगे like this and we will cut. यहां पे deep point cut करेंगे क्योंकि if you remember हमने डिस्कस करा था that we are working on lot of texture. तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, see? Slowly हम लोग जो भी extras हैं will try to take it in the front and point cut it. इस कट में हम लोग बिल्कुल भी स्ट्रेट सिजर्स को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल किल द पर्पस. सेम वी विल डू ऑन द अदर साइड. थोड़ा सा एलिवेट करेंगे. देखिए, अगर आपको सॉलिड काटना है, अगर आपको चाहिए कि फ्रिंज जो है वो सॉलिड फॉल करे, तो इन दैट केस इसको जितना 0 डिग्री में हो सकता है काटिए. और अगर आपको चाहिए कि वॉल्यूम रहे, मूवमेंट रहे, टेक्सचर रहे, तो इन दैट केस यू हैव टू लिफ्ट इट, और लिफ्ट इट अकॉर्डिंग टू द फ्रंट ऑफ द हेयर. फ्रंट में बालों के मतलब कर्ल्स कितना है, हेयर पैटर्न आपको देखना बहुत ज़रूरी है.
हेयर पैटर्न कैसा है, कितना हमें एक्सपोजर है. अगर क्लाइंट यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया होता, माई मॉडल हैज़ मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ब्रॉड फोरहेड नहीं है, नॉर्मल है, तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. अगर और ज़्यादा होता तो मैं और ऊपर करता यहाँ पे. आई वुड हैव कट इट लाइक दिस. यहाँ पे मैं यहाँ पे काटता है इसको, तो यहाँ पे मेरे को और वॉल्यूम मिलता है. सो वी डोंट नीड दैट. मैं बैलेंस करने के लिए यहां से ले लूंगा थोड़ा सा बाल और पॉइंट कट. So we will be starting tonging from the first ponytail, जो सबसे नीचे है ponytail, उससे हम tong करना start करेंगे. And we are doing a very classic technique of feeding the hair. So we'll be just feeding the hair into the tongs. And you know, actually this particular styling is for people who don't have time. जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, they come to the salon and they say कि मेरा फटाफट से आपको स्टाइलिंग कर दो. For them this is a very very good technique to achieve very quickly. टाइम इज अ ग्रेट चैलेंज. आई एग्री टू सुमित. आज के डेट में मतलब आप कोई भी सर्विसेज करो तो टाइम एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है, स्पेशली जब आप मतलब जब ब्राइडल्स सीजन्स आते हैं, सो यू गेट लॉट ऑफ क्लाइंट्स टुगेदर. तो इन दैट केस बहुत सारे स्टाइलिंग आपको साथ में करने होते हैं, तो उसमें बहुत चैलेंज आता है बड़ा. दैट इज़ यू नो लाइक स्टाइल, कोई भी हेयर स्टाइल करने के लिए यू नीड टू हैव वॉल्यूम इन दी हेयर, तो हम लोग क्रिम्प करते हैं उसके लिए. तो क्रिम्पर जो है ना, क्रिम्पिंग एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. सो आइकॉनिक हैज़ डेवलप्ड अ क्रिम्पर विच इज सुपर क्रिम्पर. विल डिस्कस दिस इन सम टाइम. सो विच कट डाउन्स योर टाइम ऑलमोस्ट टू 1/3. करेक्ट, बिकॉज उसके अंदर आपको डैब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता टोंग को, क्रिम्प को, बिकॉज क्रिम्पर यूजुअली आप ऐसा डैब करते हैं, बट उसके अंदर आप ऐसा रन थ्रू करेंगे जैसे आप आयन को रन थ्रू करते हैं और आपका बाल पूरा क्रिम्प हो जाएगा. तो AI का ज़माना है ना, सो वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग AI टू आवर टूल्स. या बिकॉज आई फील जब से इंस्टाग्राम रील्स आई हैं, सबका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, राइट. पहले हम 3-3 घंटे की मूवीज़ बैठ के देखते थे, बट नाउ हम 1 मिनट की रील भी नहीं देखते हैं सही से, राइट. सो दैट इज़ वाई, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर द क्लाइंट्स एज वेल, वो भी वही रील्स देख के आते हैं आपके पास, राइट. और उनको लगता है कि ये जो हेयर स्टाइल बनाया है इन्होंने, ये तो 1 मिनट में बन जाएगा. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप मेरे को बोल रहे हो 1 आवर लगेगा, बट दे डोंट रियलाइज जो उसके पीछे का जो प्रेप होता है, दैट एक्चुअली टेक्स टाइम. सो प्रेपिंग टेक्स टाइम, ड्रेसिंग डज नॉट टेक टाइम. So again, going back into the hair, I'll show you how I have done the tonging once I come on the top ponytail. And it is very, very important to brush out the hair really nicely before you tong or use any heated equipment in the hair. क्योंकि अगर आपके बाल के अंदर entangled रहेगा बाल, तो आपका जो curl होगा या आपका जो आपने जो straight किया है बाल को, वो बिल्कुल मेसी लगने वाला है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट लगा के उसको अच्छे से कोम आउट, ब्रश आउट करें एंड देन यूज द प्रोडक्ट. सो दिस इज माई पोनीटेल. आई एम टेकिंग माई हेयर, आई एम पुटिंग माई टोंग इनसाइड, रैपिंग इट, और नीचे से मैंने क्लैम्प बंद किया है, तो टोंग नीचे की तरफ जाएगा और फिर क्लैम्प बंद होगा उसका. एंड एवरीवन नोज बिकॉज ऑफ कर्लिंग, जब आप कर्ल करते हैं तो आपका जो डेंसिटी होता है, ओवरऑल डेंसिटी होता है बाल का, वो ज़्यादा थिकर लगता है, हैवियर लगता है. ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब आप एंड्स पे काम करते हैं ना, क्योंकि एंड सबसे ज़्यादा लेयर्ड आउट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम एंड्स पे देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से बेवल इन हो. क्योंकि अगर वो अच्छे से बेवल इन नहीं होगा
तो एंड्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे एंड देन आपको जो फाइनल रिजल्ट है जो आपको एकदम स्मूथ ऐसा अगर एस चाहिए तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है. सो गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑन दी एंड्स ऑफ दी हेयर. ओके, सो मैं यहाँ पे जो हेयर कट, मतलब यू कैन सी मैंने इस एरिया में काम कर लिया है. नाउ यू सी आई एम वर्किंग ऑन द लेंथ. लेंथ इज नथिंग, जस्ट हमें कनेक्ट करना है. दैट इज पैरेलल टू दी मतलब 90 डिग्री टू द स्कैल्प. अब नाउ आई एम टेकिंग 90 डिग्री टू द स्कैल्प. यूजुअली हम इसको ऊपर करेंगे, सो ये क्या होगा, विल गेट लेयर इन दिस एरिया, लेकिन ये फ्लैट हो जाएगा. सो वी गेट मैक्सिमम लेयर इन दी कर्वेचर 90 डिग्री, जो हम लोग काफी बार राउंड लेयर्स कहते हैं उसे. सो कर्वेचर ऑफ द हेयर इज द राइट एंगल टू क्रिएट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेयर. So I am following that curvature of the head. So section by section tong the hair. What is the temperature you guys work with? आप सब कितना टेम्परेचर से काम करते हैं टोंग पे? 200 पे अंडा बॉयल हो जाता है मैम. बाल का क्या होगा? जल्दी is very dangerous actually. I always feel that जल्दी का काम is always. So अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रही है हफ्ते में 3 बारी ब्लो ड्राई करवाने के लिए और हर बारी वो ये बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी राइट, उतनी ही जल्दी उसका बाल खराब भी होने वाला है, राइट, बिकॉज हीटेड इक्विपमेंट है. But in that case, if you're using a nice heat protection spray or a product which will protect her hair from the heat, it will be really nice. Also, the plates of the iron or the tong makes a world of a difference. अगर मेरे पास कोई client है जिनके बाल पतले हैं, breakage है, chemically treated बाल है, तो उनके ऊपर मैं titanium plates का इस्तेमाल नहीं करूँगा. I will use ceramic plates because ceramic plates are always more gentle on the hair. And people who have thick hair, like for example her, in her case we can always use a titanium plate so that my work is much quicker and she gets a lot of shine in the hair. Okay, now अभी आप लोग देख सकते हो, although मैंने बहुत ज़्यादा टेक्सचर और वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश करा है, but at the same time I have kept the फेस नीट. और पीछे से अगर आप देखोगे ऑलरेडी अ शेप विच इज क्रिएटेड, लेकिन यहां पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इट और वन लेंथ काटते हैं, तो यहां पे हम लोग नहीं करेंगे. इस एरिया में अगर हमें कुछ वो क्रिएट करना है, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग विच इज जैसे डिसकनेक्शन क्रिएट करना है, वी वांट टू क्रिएट अ डिसकनेक्टेड फ्रिंज, तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईमो. ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फेज. वी आर गोइंग फॉर द स्टाइलिंग. आई एम श्योर आप लोग सब अपने सैलून्स में स्टाइलिंग करते हो, बट सैडली देयर इज लॉट ऑफ सैलून्स दे डू स्टाइलिंग, हीट स्टाइलिंग, बट प्रोडक्ट्स ठीक से यूज नहीं कर पाते. So it is very important that you use enough products. You know, it is very important. Styling these days is so important because आजकल सारे clients जो भी आपके clients आते हैं, they ask for Instagram handle. कि पहले हम क्या होता था, पहले client आता था, they used to walk in and हम उनको इंटरनेट से कोई एक पिक्चर दिखाते थे, वो बोलते थे हाँ इसको आप रेप्लिकेट कर दो. बट नाउ व्हेन वी डू दैट द क्लाइंट सेज कि आपके पास अपना कोई काम नहीं है क्या, राइट? सो उस टाइम पे हम फंस जाते हैं कि ओ यार मैंने किया भी है बट मैंने उसका फोटो कभी नहीं लिया आज तक. बट नाउ इट इज टाइम दैट यू विल हैव टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ योर वर्क. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने काम का फोटो नहीं लोगे तो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, चाहे नहीं भी डालोगे बट आपके पास आपके काम का फोटोग्राफ तो होना चाहिए ही चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड वो अच्छा कभी लगेगा, कोई भी कट कलर करोगे आप, एनी टाइप ऑफ कट एंड कलर यू डूइंग, वो अच्छा कब लगेगा? जब बाल में स्टाइलिंग होगा. सो विदाउट स्टाइलिंग द हेयर कट, आपने कितना ही अच्छा हेयर कट किया हो, वो अच्छा नहीं लगने वाला है. सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डे, स्पेशली जब हम इंस्टाग्राम एरा में रहते हैं, कि स्टाइलिंग सीखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ खोल के, तो मुझे सिर्फ एक ही तरीके की स्टाइलिंग दिखती है उधर. ओनली वन वे ऑफ स्टाइलिंग द हेयर, एंड विच इज वेव्स. किधर भी जाओ, कोई भी इंस्टाग्राम खोलो आप, किसी भी अच्छे स्टाइलिस्ट का भी पेज खोलो, कलर बहुत अच्छा किया है, वेरी ब्यूटीफुल कलर, बट स्टाइलिंग पूरे पेज पे एक ही तरीके की स्टाइलिंग है. तो अगर कोई क्लाइंट सिर्फ स्टाइलिंग के लिए आ रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस मुश्किल होगा, क्योंकि द स्टाइलिंग इज ओनली वन काइंड ऑफ स्टाइलिंग. ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने आई यूज लॉट ऑफ स्मूथ्स, और एट द सेम टाइम आई टुक इनफ मतलब टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट नाइसली थ्रू आउट द हेयर, बिकॉज यही सिचुएशन है जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, आपके प्रोडक्ट जो है ना आपको स्टाइल करने में हेल्प करेगा. सो आई एम नॉट डूइंग एनी कंजूसी विथ माई प्रोडक्ट्स, एट द सेम टाइम आई एम नॉट डूइंग एनी कंजूसी विथ माई टाइम ऑल्सो. ऑलवेज फील द हेयर वंस इट्स ओवर द टोंग. जब आपके हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कि बाल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. सो एंड दैट इज द टाइम टू ओपन अप द हेयर. We'll just keep it for a couple of minutes. So I'm going to here, matlab use over here. Now coming on to the front. We'll take the hair, put some whole spray. बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आई हेल्प देम आउट. जब भी मैं ये सेक्शन करता हूँ, मैं इसको यहाँ ले जाके नहीं करता हूँ, बिकॉज देन इट विल कंप्लीटली ओपन अप द फेस. अगर आप चाहते हो कि ये फेस कॉन्ट्योर्ड रहे, तो यू विल हैव टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड. देन यू विल पुट योर टोंग इनसाइड एंड ट्विस्ट इट. पहला आपका ट्विस्ट फेस की तरफ ही आएगा, एंड देन एज यू गो डाउन यू ट्विस्ट इट फर्दर मोर. सो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ड्रायर. मैं थोड़ी देर में जब होने के बाद आई शेयर दिस ड्रायर विथ यू. आप लोग देखोगे, एक बार ट्राई करके देखना. दिस इज डायनामाइट प्लस. तो मतलब आप लोग जब रेगुलर ड्रायर यूज़ करते हो, व्हेन यू विल टेक दिस ड्रायर, आप लोग जब हाथ में लोगे, द फर्स्ट थिंग यू विल फील दिस ड्रायर इज वेरी लाइट, क्योंकि इसमें जो यूज़ हो रहा है BLDC मोटर. आप लोगों ने BLDC मोटर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? प्लीज़ अपना हाथ ऊपर करेंगे. ओके, BLDC मोटर के बारे में आप क्या जानते हो? कैन यू जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट BLDC मोटर? You'll have to give them a mic to talk about BLDC motor. Do we have a mic? Do we have a mic? Okay, no problem. मैं थोड़ा सा let me tell you about BLDC motor is brushless DC motors. तो बेसिकली ब्रशलेस DC मोटर का फायदा ये है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी लाइट. एट द सेम टाइम इट यूजेस लेस एनर्जी, मतलब आपका जो करंट कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होता है. एट द सेम टाइम इसका जो लॉन्जिविटी है मोटर की वो काफ़ी ज़्यादा है. मतलब आप एक बार उसको मतलब यू स्टार्ट यूजिंग इट, इट लास्ट यू वेरी लॉन्ग. सेकेंडली इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते आपके मोटर के ऊपर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम आता है. सो दैट हेल्प्स योर ड्रायर टू लास्ट लॉन्गर. So now all I'm doing is brushing out my hair, opening up my curls and trying to put it into a wave.
जब ब्लो ड्राई हम कर रहे हैं, जैसे कि सुमित ने कहा, वी डोंट ओवर हीट दी हेयर. कोई कोई लोग कर्ल्स करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, क्योंकि अगर आपके रिपीटेड क्लाइंट है, रिटर्निंग क्लाइंट है, बार बार ये ओवर हीट के वजह से उनके बाल खराब होंगे. एट द सेम टाइम दे विल लूज द इंटरेस्ट कमिंग टू योर सैलून. तो एक तो आपका जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू to style the product and hold the style for longer period of time. At the same time, heat से भी protection मिलता है आपको. Try to use as less heat as possible. So मैं इसको ऐसा तो रखने नहीं वाला हूँ बिल्कुल भी. I will take the hair and brush it out. Comb it out, I mean. Gently just comb it out and spread the hair. Use some fixing spray. Brush it out. Hold it with 2 fingers. Open it a little bit. आप लोग देख रहे हो, जब मैं मिडलेंस रूट्स और मिडलेंस को ब्लो आउट कर रहा हूं, तो आई एम पुलिंग इट अपवर्ड्स. तो जब भी आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी आप अपने बालों को पुल करते हो, ब्लो ड्राई करते हो, सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वॉल्यूम. सो जब भी आप वॉल्यूम वाला कुछ कर रहे होंगे, प्लीज मेक श्योर कि यू लिफ्ट द हेयर एज मच एज पॉसिबल. और उसके बाद व्हेन आई एम फिनिशिंग द एंड्स, तो मैं आई एम स्लोली टेकिंग इट नीचे के तरफ. सो यहां पे मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ कर रहा हूं, बिकॉज I don't want the ends to frizz out. हमें वॉल्यूम रूट्स में और मिड में क्रिएट करना है, एंड्स को हमें कंट्रोल में रखना है. So I'm taking a little bit of gel now. I'm putting it into the bowl. I'm taking a little bit of sparkle. I am mixing it in the bowl. Mixing that well. So I have with my brush Then I have this little bit of makeup brush. I am going back, dabbing this, just a dab. So you have to dab it, only dab it, and use a little bit of hairspray, or with the hairspray, on the hairspray, जहाँ पर आपको ज़्यादा ग्लिटर चाहिए वहाँ पर उसको आप डैब करेंगे.
just gonna shut it quickly, जिससे पहले सारा उड़ जाए. Then you can take your hairspray, go back, spray it, brush it out nicely. यूजुअली जब हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, मतलब काफ़ी लोग मतलब प्रॉपर सेक्शंस निकाल के एकदम दे डू दी ब्लो ड्राई, विच इज़ गुड, कंट्रोल अच्छा मिलता है. लेकिन यूजुअली आई डोंट प्रेफर प्रॉपर सेक्शंस, क्योंकि उससे काफ़ी बार ना लाइंस क्रिएट हो जाते हैं जो बाद में ना मतलब वो सेपरेशन जैसा दिखता है हेड का. सो यूजुअली आई प्रेफर टू टेक रैंडम चंक्स जिसमें हम ब्लो ड्राई करें. तो जैसे यू नो इट्स बीन सेड, देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हेयर ड्रेसिंग. जो भी आपके लिए वर्क करता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, सो यू कैन ट्राई दोज टेक्निक्स फॉर यू. So जब भी आप फिक्सिंग स्प्रे का यूज करेंगे ना, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस. इट हैज टू बी इन ब्रेक्स, इन इंटरवल्स. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं एंड्स को फ्लिप आउट कर रहा हूं बिकॉज एंड्स आर माय की एरिया ऑफ द हेयर कट. ऑफ कोर्स टॉप जो है वॉल्यूम तो है ही, बट यहाँ पे जो हेयर कट मैंने किया है उसका एक ये पार्ट भी है कि टॉप जो है इट इज अबाउट नीटनेस, और जो हमारा टेक्सचर है वो मोस्टली हम लोग जो मिडिल एरिया है, दिस एरिया वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर. So when you will be walking, no sudden jerks of the head. Okay, just very gentle, slow walk. Yeah, just have a seat. We'll waiting him for the finish, then and keep your head straight. Right? Don't do that. Yeah. So we're waiting for Anjan to finish, and then we'll present the final look. Till then, I can ask you questions. You have any doubt? Any? And yes, please, ma'am. Hello, 1 minute, ma'am. I will give you the mic. Hold on. Hindi or English? कर्लिंग करने से पहले आपने क्या यूज किया था लॉन्ग लास्टिंग के लिए? प्रोडक्ट हाँ? होल स्प्रे. कोई भी हीट प्रोटेक्शन होल स्प्रे आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपके बालों के अंदर कंट्रोल मिले और बाल जल्दी से उसका जो कर्ल है या जो वेव है वो खुल ना जाए. सो एनी प्रोडक्ट, एनी ब्रांड विल डू. आई एम हैप्पी, बट वो होल्ड होना चाहिए उसके अंदर थोड़ा सा. अच्छा, पहले हम मूव यूज करते तो ओएड हेयर में पहले कर सकते हो 100%. गीले बाल पे आप मूव यूज करेंगे, फुल ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद आप अगेन चाहो तो आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा सकते हो, बट यू कैन स्किप इट ऑल्सो इफ यू यूज द मूव. पहले अगर मूव लगा लिया है तो हम होल्डिंग स्प्रे टैप के यूज कर सकते हैं, टैप 5+. any holding spray will do.
there are many brands which are creating heavy strong hold spray, but आप ये make sure करना कि जो आपका hold spray है, दो तरीके के होल स्प्रे आएंगे, एक जो आपको थोड़ा मैट फिनिश देगा और एक जो आपको बहुत ग्लॉस फिनिश देगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स डिमांड एंड नीड वी हैव टू अंडरस्टैंड उसको ग्लॉस पसंद है कि उसको मैट पसंद है. अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू यूज अ होल्ड स्प्रे. इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो ग्लॉस है या मैट है. वो आप कर्लिंग करने से टाइम जो स्प्रे यूज करते हैं वो साइन स्प्रे है या होल स्प्रे, होल स्प्रे वो तो बहुत ही, ये बॉटल बहुत आइकॉनिक बॉटल है. ये बॉटल देख के पहचान लेते हैं लोग कि ये कौन सा स्प्रे है. आई होप आप सब ने पहचान ही लिया होगा व्हाट स्प्रे आई एम यूजिंग फॉर होल्ड. और लास्ट में क्या यूज किया सर? लास्ट में एकदम लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? अगेन जो लास्ट में यूज किया था दैट इज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट, फिनिशिंग स्प्रे, फिनिशिंग स्प्रे. सो मैं दो तरीके के स्प्रेज यूज करता हूँ हमेशा, होल स्प्रे एंड फिनिशिंग स्प्रे. तो मैं जब फिनिश होता है तब मैं होल स्प्रे नहीं यूज़ करता, तब मैं हमेशा फिनिशिंग स्प्रे यूज़ करता हूँ. क्योंकि फिनिशिंग स्प्रे कैसा होता है ना, वो आप बाल को ऐसा सीधा खड़ो करोगे और उस पर स्प्रे लगा दोगे ना, तो वो ऐसा जब तक ड्राई होगा तो वो वैसा ही खड़ा रहेगा. बट होल्ड स्प्रे क्या रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, तो आप उसको अगर कोम आउट करना चाहो, ब्रश आउट करना चाहो तो आसानी से हो जाता है. फिनिशिंग स्प्रे एक बारी लग गया तो अच्छे से ब्रश आउट करने में उसको मुश्किल रहेगा आपको. तो सर ये कर्लिंग करने के बाद हम क्लाइंट को कितने टाइम तक बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द हेयर. कि अगर बाल बहुत फाइन है, पतला है, बहुत सिल्की है, तो उसके अंदर आपको पहले मूव लगाना ही पड़ेगा, फिर होल्डिंग स्प्रे लगाना ही पड़ेगा, और फिर फिक्सिंग स्प्रे और होल्डिंग स्प्रे लगा के कर्ल्स करने के बाद उसको बैरल बना के पिन करना पड़ेगा, तो फिर वो लास्ट करेगा. बट नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि बाहर ह्यूमिडिटी लेवल, मॉइस्चर लेवल कितना है. अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मॉइस्चर है तो 4-5 घंटा. बट अगर बिल्कुल नहीं है, अच्छा ठंडा मौसम है, बिल्कुल बाहर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं है, 2-3 दिन आराम से. और सर और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, हम कितने चार्ज पे कर सकते हैं क्लाइंट को ये कर्लिंग के बाद? सॉरी, कितने चार्ज पे कर सकते हैं क्लाइंट को? कितना चार्ज? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. पैसों की कहाँ कमी है? पैसा की तो कमी पैसा है, तो सर, जितना भाग आ जाए जाएगा उतना तो अच्छा है. सारे भाग जाएगा वो पर कभी नहीं आएगा. No, so you have to set prices for your services in your salon. तो अगर आप कोई अप स्टाइलिंग सर्विसेज कर रहे हो तो यू हैव टू सेट योर प्राइजेस हायर देन द ब्लो ड्राई प्राइस. क्योंकि ब्लो ड्राई में तो आप सिर्फ ब्लो ड्राई करके छोड़ देते हो, इसके अंदर आपको ब्लो ड्राई करना पड़ेगा, टोंग्स करने पड़ेंगे, फिर पिन्स लगेंगे, आपके रबर बैंड्स लगेंगे, तो आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो पूरा निकल के आना चाहिए. So anywhere between, I used to charge about 4,000-5,000 rupees per client for something like this. But then again, it is your completely choice. 1,500, 2,000 जो भी आप अपने salon में set करना चाहते हो. हमें जिस एरिया में काम करते हैं हमें इतने चार्ज नहीं मिलते हैं. तो फिर that's what I'm saying कि आप अपने हिसाब से you can keep the prices. जैसा भी आपको ठीक लगे कि आपके clients pocket friendly. क्लाइंट को काम भी अच्छा चाहिए, काम पर पैसे में अच्छे नहीं चाहिए. यही तो प्रॉब्लम है मैम, काम भी अच्छा चाहिए और पैसा भी नहीं निकालना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा. So Anjan, we'll have to wrap up. Yeah. No, don't turn your head. We'll have to wrap up. You'll have to show them the results on the iconic stage. Yeah. Okay. Don't move your head. So what we will do a quick finish of this. तो आप लोग जो है आइकॉनिक स्टेज पे आ जाइए, तो वहाँ पे इनका फिनिश करके हम लोग दिखाते हैं. Okay, so mine is ready. So what I can do is I can ask her to stand up. Please go ahead in the stage. Show them what we have done to your hair. Yeah, turn. Let them have a look. We'll have the music a little more louder, and can we have the walk once again?
Hello. Yeah. Everyone, please put your hands together. Everybody, come on. Okay, so please follow us to the iconic stage. So we will show the complete result out there. Okay? Okay. Shreya, please. Thank you so much, Anjana and Sumit. Thank you, everybody. And yes, please stay there because our next session from the sales professional, our sponsor, Nail Care Partner, Dera are sir, from Dera here. sir. Someone is there. Nipa Shah. Please put your hands together. You all know that the Nail Queen, and I know that এখানে প্রচুর student আছে